Assalamu alaikum student. Student, do you know two verbs, to be and to have, actually rule the world. And without them, no sentence can make, no idea can live. So let's master the heart and soul of English communication. Student, we are going to learn to be and to have. And we are going to revise all the possible things which we taught you in the previous session. We taught you SMR, we taught you was, we taught you has have. And what is to be and to have? To be is actually is MR and was were, and to have, which I taught you in the last session. So student, stay connected with us and remember this thing. The more you speak, the more you will learn. जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे. The more you speak, the more you will improve. So student, let's start. Stay connected with us and I want you to be focused. I want you to be attended. Student, देखिए, to be and to have. First, I'm going to explain you what is to be. To be actually is MR and was were. ये is MR and was were है. लेकिन इस तरह तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि I be a teacher, मैं एक टीचर हूँ. This is going to be completely wrong. ये मुकम्मल गलत होने वाला है. तो instead of saying I be a teacher, you have to say I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. मैं एक टीचर था. I was a teacher. मैं एक टीचर हूँगा. I'll be a teacher. And here you can see the situation of present perfect continuous. Yes student, how we will explain it? So here I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ. So you have to say here, मैं 2 सालों से एक टीचर हूँ. I have been a teacher for 2 years. मैं एक टीचर था. I was a teacher. मैं 2 सालों से एक टीचर था. I had been a teacher for 2 years. मैं एक टीचर हूँगा. I'll be a teacher. मैं 2 सालों से एक टीचर हूँगा. So I will have been a teacher for 2 years. मैं बीमार हूँ. I am ill. मैं बीमार था. I was ill. मैं बीमार हूँगा. I will be ill. मैं बीमार हूँ. I am ill. मैं सुबह से बीमार हूँ. I have been ill since morning. मैं सुबह से बीमार था. I have been ill since morning. मैं सुबह से बीमार हूँगा. I will have been ill since morning. मैं यहाँ हूँ. I am here. मैं यहाँ था. I was here. मैं यहाँ हूँगा. I'll be here. I'll be here. मैं सुबह से यहाँ हूँ. I have been here since morning. मैं सुबह से यहाँ था. I had been here since morning. मैं सुबह से यहाँ हूँगा. I will have been here since morning. मैं अपने अब्बू के साथ हूँ. I am with my father. मैं अपने अब्बू के साथ था. I was with my father. मैं अपने अब्बू के साथ हूँगा. I'll be with my father. मैं सुबह से अपने अब्बू के साथ हूँ या इस तरह instead of saying this आप कह सकते हो कि मैं 2 दिनों से अपने अब्बू के साथ हूँ. I have been with my father for 2 days. मैं 2 दिनों से अपने अब्बू के साथ था. I had been with my father for 2 days. या मैं 2 दिनों से अपने अब्बू के साथ हूँगा. I will have been with my father for 2 days. Got it student? इस तरह से आप कह सकते हो कि मैं बिजी हूँ. I am busy. मैं बिजी था. I was busy. मैं बिजी हूँगा. I'll be busy. वो बिजी है. He is busy. वो बिजी था. He was busy. वो बिजी होगा. Sorry. He will be busy. तो वो बिजी है. He is busy. वो सुबह से बिजी है. He has been busy since morning. वो सुबह से बिजी था. He had been busy since morning. वो सुबह से बिजी होगा. He will have been busy since morning. आप एक डॉक्टर हो. You are a doctor. आप एक डॉक्टर थे. You were a doctor. आप एक डॉक्टर होंगे. You will be a doctor. आप 2 सालों से एक डॉक्टर है. You have been a doctor for 2 years. आप 2 सालों से एक डॉक्टर थे. You had been a doctor for 2 years. आप 2 सालों से एक डॉक्टर होंगे. You will have been a doctor for 2 years. आप यहाँ हैं. You are here. आप वहां थे. You were there. आप वहां है. You are there. आप वहां है. You are there. आप वहां थे. You were there. The situation is going to be changed into past. देखिए, आप यहाँ है. You are here. आप यहाँ थे. You was, उर्दू में भी इस तरह हम कहते हैं ना. देखिए, मैंने आपको सेशन में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. जब आप कहते हैं मैं यहाँ हूँ, I am here. कहते हैं ना मैं अब्बू के साथ था, मैं यहाँ हूँ. मैं कोई टेंसेस वाले सेंटेंस आपको नहीं, इंशाल्लाह वो भी बहुत इफेक्टिव वे में आपको सिखाने
के लिए आ रहा हूँ। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए आप सीखे कि ये हम नाकाम वाले, जिसमें आप कोई काम नहीं करते, आप सिर्फ कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसे है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास नॉलेज है। इसी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एंड आप उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हो। आप अपने आप को इंप्रूव करो, आप इंग्लिश आसानी से और इजी वे में लर्न करने जा रहे हो। स्टूडेंट देखिए, जब आपको कहना है कि मैं यहाँ हूं, आई एम हियर, जब आपको पास्ट में कहना है कि मैं यहाँ था, आई वॉज हियर, मैं अभी यहाँ हूं लेकिन कल मैं वहां होऊंगा, आई एम हियर राइट नाउ बट टुमारो आई विल बी देयर, मैं वहां होऊंगा, आई विल बी। देखिए पास्ट फ्यूचर, मैंने प्रेजेंट से डायरेक्ट जंप किया फ्यूचर पे, मैं यहाँ हूं, आई एम हियर, कल मैं वहां होऊंगा, टुमारो आई विल बी देयर। मैं अपने अब्बू के साथ हूं, आई एम विद माई फादर, वो अपने अब्बू के साथ है, ही इज विद हिज फादर, वो अपने अब्बू के साथ है, दे आर विद देयर फादर। सिंपल, वो अपने अब्बू के साथ थे, दे वर विद देयर फादर, वो अपने अब्बू के साथ थे, दे वर विद देयर फादर, वो अपने अब्बू के साथ होंगे, दे विल बी विद देयर फादर, वो अपनी फैमिली के साथ है, ही इज विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ था, ही वाज विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ होगा, ही विल बी विद हिज फैमिली। इजी स्टूडेंट, इजी वे टू लर्न इंग्लिश। मैं बीमार हूं, आई एम इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल, मैं बीमार हूंगा, आई विल बी इल, मैं 2 सालों से बीमार हूंगा। यू कैन नॉट से दिस बट कह सकते हो, आई विल हैव बीन इल फॉर 2 years। मैं सुबह से, रोहन 2 सालों से मेरे पास है, रोहन हैज बीन विद मी फॉर 2 years, रोहन 2 सालों से मेरे पास था, रोहन हैड बीन विद मी फॉर 2 years, रोहन 2 सालों से मेरे साथ होगा, रोहन विल हैव बीन विद मी फॉर 2 years। आप यहां हैं, यू आर हेयर, आप वहां थे, यू आर देयर, आप छत पर थे, यू वर ऑन द रूफ, आप छत पर होंगे, यू वर ऑन द रूफ, आप सुबह से छत पर होंगे, यू विल हैव बीन ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से छत पर थे, यू हैड बीन ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से छत पर है, यू हैव बीन ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। तो इन कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? देखे, जब आप अभी यहाँ पर है या अभी कोई किसी जगह पर अवेलेबल है या, तो आप उसके लिए प्रेजेंट में है, तो आप कहेंगे, मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सेंटेंस को आपको समझा देता हूं, मैं यहाँ हूं, आई एम हियर। अगर आपको कहना है कि मैं वहां था, अभी आप यहाँ है, नाउ यू आर हियर, और आप किसी को एंड यू आर सेइंग मैं वहां था, तो आप कहेंगे आई वाज देयर, और कल मैं इस्लामाबाद में हूंगा, एंड टुमारो आई विल बी इन इस्लामाबाद, आई विल बी इन स्कूल, मैं स्कूल में हूंगा, आई विल बी विद माई फादर, आई विल बी इन बर्थडे पार्टी, आई विल बी ऑन द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूंगा। इसी तरह स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन सिखा रहा हूं कि किस तरह आपने पेन कॉपी लेकर वर्ड्स लिख के अपने प्रैक्टिस करना है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर था, आई वॉज ए टीचर, मैं 2 सालों से एक टीचर हूं, आई हैव बीन ए टीचर फॉर 2 years। पास्ट में कहना है तो मैं 2 सालों से एक टीचर था, आई हैड बीन ए टीचर फॉर 2 years, मैं 2 सालों से एक टीचर हूंगा, आई विल हैव बीन ए टीचर फॉर 2 years। सिंपल, कुछ नहीं है। अगर आपने सिंपल कहना है, अगर आप वक्त नहीं दिखाना चाहते, इसमें कमाल बात यह है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर सीख लो, आप वक्त दिखाओगे कि मैं सुबह से वहां था, सो आई हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग, मैं बाजार में था, सुबह से मैं बाजार में था, सो आई हैड बीन एट बाजार सिंस मॉर्निंग। हैव नहीं, हैड, क्यों? ता की बात देखे, प्रेजेंट हैज हैव, पास्ट हैड, और फ्यूचर विल हैव। फ्यूचर देखे, इधर देखे ना, अब बी का मतलब क्या है, हैव का मतलब क्या है? बी जब आप हो, और हैव जब आपके पास कोई चीज है, देखिए अब हैव की तरफ थोड़ा सा स्विच करते हैं। मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास स्किल्स है, आई हैव स्किल्स, मेरे पास टैलेंट है, आई हैव टैलेंट, मेरे पास टैलेंट था, आई हैड टैलेंट, मेरे पास टैलेंट होगा, आई विल हैव टैलेंट, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब इस तरह थोड़ा देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास 2 सालों से ये कार है, आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years, आई हैव हैड दिस कार, मेरे पास ये कार 2 सालों से, आई हैव हैड दिस कार
फॉर 2 इयर्स। स्टूडेंट ज्यादा रूल की तरफ नहीं जाते। अगर मैंने आपको ये बता दिया कि हैव और हैड, आपको पता है हैज हैव तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल और सिंगुलर। यहाँ पर अगर आपने ही हैज हैड दिस कार फॉर 2 इयर्स, रोहन या तैमूर या अली हैज हैड दिस कार फॉर 2 इयर्स, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट जब आपके पास कोई चीज, जब आपके पास कोई चीज है तो यहाँ पर आप लगाते हो, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, हम हैव या हैज के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैज हैव की जो थर्ड फॉर्म है, मैं तो कहता हूं आप सिर्फ सुने और अगर समझना चाहते हो तो समझे, लेकिन टेंसेस में ये तमाम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड। अगर यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब आती, कम केम, एक्शन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब, कम केम कम, गो वेंट गोन, टॉक टॉक टॉक, ये सारी एक्शन वर्ब। अगर यहाँ पर कोई हेड के बजाय एक्शन वर्ब भी आती तब भी वो थर्ड फॉर्म में आती। हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी हेड है, थर्ड फॉर्म भी हेड है, इस वजह से हम लगाते हैं। लेकिन इस रूल पे मैं नहीं जाता, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, स्टूडेंट को थोड़ी सी समझ, थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। तो अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास ये गाड़ी 2 सालों से है। आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 इयर्स। मेरे पास ये गाड़ी 2 सालों से थी। आई हैड कार, मेरे पास 2 सालों से ये गाड़ी थी। आई हैड, देखिए 2 दफा हैड आ रहा है। आई हैड दिस कार फॉर 2 इयर्स। मेरे पास ये कार 2 सालों से होगी। आई विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 इयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये तमाम चीजें समझाऊंगा इंशाल्लाह। टेंसेस की वीडियो में इंशाल्लाह तमाम चीजें समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप देखें, मेरे पास पैसे, आई हैव मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे होंगे। आई विल हैव मनी, मेरे पास एनर्जी है। आई हैव एनर्जी। देखिए स्टूडेंट रूल को देखिए कितना इजी, कितना अंडरस्टैंडेबल है। देखिए आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है। जब आप प्रेजेंट है तो हैज लगाए, हैव लगाए। उसके पास पैसे है, ही हैज मनी, सब्जेक्ट को चेंज करे। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट को एक और भी होती है कि यहां पर तो देखे सब्जेक्ट के पास ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है। लेकिन अगर इस बजाय इसके इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम इस तरह करें कि उसके पास पैसे है, उसके पास, देखिए उर्दू में जरा कंपैरिजन करें, स्टूडेंट कहते हैं फिर भी है ही। यहां पर तो ही की मीनिंग है वो, और यहां पर ही की मीनिंग उसके पास। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को ये कि वो एक टीचर है, ही इज ए टीचर। लेकिन अगर हम इस तरह कहे कि उसके, देखिए इसकी इंग्लिश है ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है, और ही हैज मनी, उसके पास पैसे है। तो देखिए यहां पर दोनों के लिए, उसके पास भी और वो, दोनों की इंग्लिश ही निकल रही है। स्टूडेंट तो हम उर्दू में भी इस तरह कहते हैं, जब हम किसी लड़के की तरफ इशारा करते हैं या वो, तो हम इस तरह तो नहीं कह सकते ना कि उसके पास उसके एक टीचर है, इस तरह तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हम इस तरह ही दोनों के लिए लगाते हैं। हम उर्दू में भी इस तरह कहते हैं कि उसके पास पैसे है, उसके पास नॉलेज है। जब आप बोलने में उर्दू में बोलते हैं या पश्तो में बोलते हैं इस तरह, उसके पास पैसे है, वो एक टीचर है, दोनों की इंग्लिश सेम है, ही। दोनों की, उसके पास तो ही, वो ही ना, वो दे हैव, उनके पास, दे वो। तो सही है ना स्टूडेंट, हम बातचीत में इस तरह करते। तो उसके पास पैसे है, ही हैज मनी, उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव मनी, उसके पास स्किल है, ही हैज स्किल्स, उसके पास स्किल थे, ही हैड स्किल, उसके पास स्किल होंगे, ही विल हैव स्किल, उसके पास टैलेंट है, ही हैज टैलेंट, उसके पास टैलेंट था, ही हैड टैलेंट, उसके पास टैलेंट होगा, ही विल हैव टैलेंट। उनके पास एनर्जी है, दे हैव एनर्जी। देखिए सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, दे हैव एनर्जी, उनके पास एनर्जी थी, दे हैड एनर्जी, उनके पास एनर्जी होगी, दे विल हैव एनर्जी। और उनके पास उनके पास एनर्जी सुबह से है, दे हैव हैड एनर्जी सिंस मॉर्निंग। इस तरह लगता नहीं है लेकिन खैर सेंटेंस में प्रैक्टिस के लिए चल जाता है। दे हैव हैड एनर्जी सिंस मॉर्निंग, उनके पास एनर्जी सुबह से थी। दे हैड हैड एनर्जी सिंस मॉर्निंग, उनके पास सुबह से एनर्जी होगी। दे विल हैव हैड एनर्जी सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट आई होप सो आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते, थोड़ा सा और टंग पे इसको बिठा लेते ताकि आपको स्पीकिंग में कोई मसला ना हो। हाँ, तो नेगेटिव में आते हैं। स्टूडेंट अगर आपने कहना है आई
एम नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं 2 सालों से एक टीचर नहीं हूं। देखिए इसका अगर आपने नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अगर आपने नेगेटिव पढ़ना है तो आई एम नॉट ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं? एम आई ए टीचर? इसका मैंने मुकम्मल तरीका आपको प्रीवियस सेशन में सिखाया है कि किस तरह आपने किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव को और नेगेटिव से इंटरोगेटिव में आपने पुश करना है, आपने चेंज करना है। तो इसी तरह से आप देखें, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं, आई एम नॉट ए टीचर। आर यू ए टीचर? आर यू ए डॉक्टर? आर यू देयर? आर यू हियर? इज दिस योर पेन? वाज दिस योर पेन? विल दिस पेन बी योर्स? इस तरह भी कह सकते हैं। तीनों सिचुएशन में कोशिश करें कि रैंडम सेंटेंस बोलते जाए। आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। आप यहाँ हो, यू आर हियर। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर, यू शुड बी। आप क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप किससे बात कर रहे हो? विद whom आर यू टॉकिंग? आप क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ, आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ। आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आप अभी कहाँ हो? वेयर आर यू राइट नाउ? मैं बाजार में हूँ अभी, आई एम एट बाजार राइट नाउ। मैं अपने अब्बू के साथ हूँ, आई एम विद माई फादर। मैं अपनी अम्मी की मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग माई मदर। इसी तरह प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी तरह जबरदस्त बढ़िया आपको आपकी इंग्लिश में आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में आपकी मदद करूंगा। बस हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करें। जब भी आपने किसी सेंटेंस को नेगेटिव में, आई एम नॉट ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूं? एम आई ए डॉक्टर? वो यहाँ है, वो यहाँ है, ही इज हियर। वो यहाँ नहीं है, ही इज नॉट हियर। क्या वो यहाँ है? इज ही हियर? इज ही हियर? मुकम्मल तरीका आपको सिखाया हुआ है किस तरह चेंज करते। इज ही हियर? वो यहाँ थी, शी वॉज हियर। वो यहाँ नहीं थी, शी वॉज नॉट हियर। क्या वो यहाँ थी? वॉज शी हियर? वो यहाँ होगी, शी विल बी हियर। वो यहाँ नहीं होगी, शी विल नॉट बी हियर। इसका नेगेटिव, इसका मैंने नहीं सिखाया। फ्यूचर को जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसका तरीका यह है कि विल, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड को मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ड के बाद डायरेक्ट नॉट लगा देंगे। तो आपने देखा शी विल बी हियर, वो यहाँ होगी, शी विल नॉट बी हियर। देखिए विल के बाद हमने डायरेक्ट क्या लगाया? विल के बाद हमने नॉट लगाया, शी विल नॉट बी हियर। फिर वही विल को हमने फिर क्या कर दिया? विल, सब्जेक्ट को हम लगाया, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी बी हियर? विल शी बी हियर? अब किसी को अगर ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस सेशन में, प्रीवियस सेशन में। अभी मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहा हूं। अभी मैं आपको अपने साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं ताकि आप भी कुछ सीखे, ताकि आप भी अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाए। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जब भी आपने सेंटेंस को नेगेटिव में, सो आई एम नॉट हियर, आई वाज नॉट ए डॉक्टर, आई वाज नॉट ए टीचर, वर यू ए डॉक्टर, वर यू ए टीचर, वर यू ए जज, एक एक सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बनाए। आई हैव मनी, मेरे पास मनी है। आई डोंट हैव मनी, देखिए यहाँ आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं। डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे है? डू आई हैव मनी? क्या मेरे पास पैसे है? मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे थे खर्च करने के लिए? डिड यू हैव मनी टू स्पेंड? क्या आपके पास टाइम था यहाँ आने के लिए? डिड यू हैव टाइम टू कम हियर? क्या आपके पास पानी था पीने के लिए? डिड यू हैव वाटर टू ड्रिंक? क्या आपके पास स्किल थी कुछ करने के लिए? डिड यू हैव स्किल टू डू समथिंग? क्या आपके पास एनर्जी थी इस काम को मुकम्मल करने के लिए? डिड यू हैव एनर्जी टू कंप्लीट दिस वर्क? डिड यू हैव एनर्जी टू कंप्लीट दिस वर्क? मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, इसका आसान है। विल जहां पर भी स्टूडेंट विल आए ना, विल वाला टेंस वो बहुत ही आसान होगा। देखिए इसको आसान में, मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे होंगे? विल आई हैव मनी? विल आई हैव मनी? क्या मेरे पास टैलेंट होगा? विल आई हैव टैलेंट? क्या मेरे पास एनर्जी होगी? विल आई हैव एनर्जी? क्या मेरे पास पानी होगा? विल आई हैव वाटर? क्या मेरे 2 भाई हैं वो होंगे? विल आई हैव 2 ब्रदर? क्या मेरी 2 बहनें होंगी? विल आई हैव 2 सिस्टर? क्या मेरा एक बेटा और एक बेटी होगी? विल आई हैव ए सन एंड ए डॉटर? विल आई हैव ए सन एंड ए डॉटर? क्या मैं वहां होऊंगा? विल आई बी देयर? अब सेंटेंस चेंज होगा। देखिए मेरा आप अगर इस तरह कहते कि मैं ऐसा हूं, या आप कहते हो कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर,
लेकिन अगर आप इस तरह के हो आई एम ए टीचर, लेकिन अगर आप इस तरह कहते हो कि मेरे पास टीचर है, आई हैव अ टीचर, आई हैव अ इंग्लिश टीचर, मेरे पास इंग्लिश टीचर है, और आप इस तरह भी कह सकते हो आई हैव हारून सर, मेरे पास हारून सर है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। ये वाले टेंसेस, ये दो, जब आपके पास कोई चीज किसी वक्त से है, मतलब मैं 2 सालों से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years, मैं 2 सालों से यहाँ था, आई हैड बीन हियर फॉर 2 years, मैं 2 सालों से यहाँ आऊंगा, आई विल हैव बीन हियर फॉर 2 years। रोहन के पास ये कार 2 सालों से है, रोहन हैज हैड दिस कार फॉर 2 years, रोहन के पास ये कार 2 सालों से थी, रोहन हैड दिस कार फॉर 2 years, रोहन के पास ये गाड़ी 2 सालों से होगी, रोहन विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। ये मार्कर मेरे पास 2 सालों से है, आई हैव हैड दिस मार्कर फॉर 2 years, ये मार्कर मेरे पास 2 सालों से था, I had had this marker for 2 years, ये मार्कर मेरे पास 2 सालों से होगा, I will have had this marker for 2 years। जब कोई चीज आपके पास किसी वक्त से है तो have, had, will have had। जब आप कोई कुछ हो जहां पर आप हो, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में 10 सालों से हो, आप हो, आपके पास नहीं है, आप हो, तो आप कहेंगे मैं 10 सालों से पाकिस्तान में हूंगा, आई विल हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर 10 years, मैं 10 सालों से पाकिस्तान में हूं, आई हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर 10 years, मैं 10 सालों से पाकिस्तान में था, आई हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर 10 years। मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास स्किल है, आई हैव स्किल। सुनिए मैं बार बार इस तरह से रिपीट करवाऊं, बार इस तरह, व्हेन यू रिपीट अगेन एंड अगेन यू विल हैव कमांड ऑन दिस, आपको कमांड हो जाएगा। और कोशिश करें रैंडम सेंटेंस, ये बेसिक जो सेंटेंस होते हैं, मैं आता हूँ, आई कम हियर, मैं जाता हूँ, आई गो देयर, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूँ, इंप्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई मदर, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई फादर, मैं अपनी अम्मी की मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग माई मदर, आई हेल्पिंग माई मदर। इसी तरह से आप ये सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस बोलते जाए, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आई होप सो दिस वाज द रिवीजन क्लास, ये आपकी रिवीजन क्लास थी, हैज और हैव, इसके पास साथ मैंने ये 2 टेंस और ऐड किए, ये तकरीबन 6 टेंसेस है, ये इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा फिर। लेकिन आई होप सो फिल वक्त के लिए आपको अच्छी से समझ आया। टू बी एंड टू हैव, एक्चुअली इट इज टू बी एंड टू हैव। टू बी मीन इज एम आर वाज वर्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टू बी हम मतलब ये बी जो वर्ब है ना, इससे एक्चुअली इज एम आर वाज वर्ड निकले। हम इस तरह नहीं कह सकते कि आई बी ए टीचर, ये डायरेक्ट, ये एक मेन वर्ब है, इससे फिर ये इज एम आर निकली है। हमने इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस हमने कहना आई एम ए टीचर, आई वाज ए टीचर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अभी के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई इंसिस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और अपनी पर्सनालिटी में एक ज़बरदस्त चेंजेस लाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।